and they did not become as the gods. लेकिन वो परमेश्वर के तुल्य नहीं हुए, जैसा कि वहां लिखा है, But they did come to know good and evil. लेकिन वो वो बस समझ गए कि अच्छा और बुरा का ज्ञान क्या है। Now, what tempted Eve and later Adam was verse 6. There are three things mentioned there. और जो हवा उस परीक्षा में पड़ी, उसके विषय में 3 बातों को बताया जाता है। First, it was good for food, so it was desirous to eat. तो वहां पे देखा कि वो फल दिखने में अच्छा था और खाने में लाभदायक था। Second, it was pleasant to the eyes. और दूसरी बात जो दिखाते वो देखने में बहुत सुंदर था, It was beautiful to look at. और वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। And thirdly, it was desired to make one wise. और तीसरा उसका वहां पे इच्छा आ जाता है कि वो वहां बुद्धिमान बने। And these are the three major temptations still for each one of us today in 2025. ये तीन वो घटनाएं हैं जो हम सबके जीवन में बार बार आती है परीक्षा के दौरान। Look at Matthew 4 on one hand and 1 John 2:15 in the other hand. आइए मत्ती रचित सुसमाचार का 4था अध्याय देखेंगे, साथ साथ पहला यूहन्ना 2:15 भी देखेंगे। 1 John chapter 2 verse 15, it says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Verse 16, "For all that is in the world, 1, the lust of the flesh," it was good for food. Secondly, the lust of the eye, pleasant for the eyes. Thirdly, the pride of life, desire to make one wise, is not of the Father, but of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. और पहला यूहन्ना 2:15 और 16 में इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसारों की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। Now these three areas of temptation cover basically all temptations you have to face in your life. ये जो 3 परीक्षा की जो बातें हैं, ये सारी उन परीक्षा की बातों में आता है। These were the same 3 temptations Jesus Christ had to go through in Matthew and Luke chapter 4. और ये जब आप लूका रचित सुसमाचार का 4था अध्याय पढ़ेंगे, ये तीनों परीक्षा की बातें वहां भी आती है। Go to Matthew chapter 4 and we see the first temptation is that the devil says to the Son of God, "Command these stones to be made bread." और जब मत्ती रचित सुसमाचार 4थे अध्याय का 1 से आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने यीशु मसीह को आज्ञा दिया कि उस पत्थर को रोटी बना दे। That is in accordance with the lust of the flesh and good for food for Eve. और वहां पर हम देखते हैं जो शरीर की अभिलाषा है और वो खाने में बहुत अच्छा है। The second temptation in Matthew chapter 4 verse 6. और दूसरा जो परीक्षा का घड़ी है वो मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 6 में आपको देखने को मिलेगा। That he says, "Well, if you are the Son of God," verse 6, "cast yourself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone." और जैसे 6 में लिखा है, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। And that matches Eve's desire to make one wise. यहां पर आप देखते हैं व्यक्ति का बुद्धिमान बनने के विषय में बताता है, Or the pride of life in 1 John 2:16. और ये जीवन का एक घमंड भी दिखाता है, जैसा कि हमने पहला यूहन्ना 2:15 में पढ़ा। And the third temptation we find in verse 8, that the devil takes Jesus Christ up into a high mountain and shows him all the kingdoms in the world and the glory thereof. और तीसरी जो परीक्षा हम देखते हैं वो 8वें में कि किस प्रकार से शैतान यीशु को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के सारे राज्य दिखाए और वैभव दिखाया। And that one matches the lust of the eyes or Eve's pleasance to the eyes. और ये
आंखों की अभिलाषा को दिखाता है, जो कि हवा के वहां फल को लेकर के आंखों की अभिलाषा दिखाई गई थी। So the last temptation is that the devil says, if you worship me, I'll give you all these glory and all these kingdoms. और आखिरी जो परीक्षा का घड़ी था वो ये था, शैतान ने कहा यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे, मैं ये सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। So that's the temptation where you say, oh, don't do it yourself, don't let God do it, let the devil do it for you. और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का कारण बन सकता है, जब आप बोलेंगे अरे परमेश्वर को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शैतान अपने आप सब कुछ कर लेगा। And the second temptation is, don't do anything for yourself, let God do everything for you. That's Calvinism. और दूसरा जो परीक्षा का घड़ी बताता है कि शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। And the first temptation, the lust of the flesh, is I'll do it myself, Arminianism. I can save myself. और पहला जो परीक्षा का घड़ी बताता है वो अपने ऊपर निर्भर रहने के लिए होता है कि हाँ, मैं कोई भी काम खुद से कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। And that's basically the three main temptations Eve was faced with, and you and I are faced with, and Jesus Christ was faced with. ये वो तीन परीक्षा के बातें हैं जो यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में अनुभव किया, हवा ने भी अपने जीवन में अनुभव किया, यहाँ तक कि अभी के समय में आप और मैं भी इस तीन बातों का परीक्षा के अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। And let's look at how Jesus Christ combated these temptations of the devil. आइए हम देखें किस प्रकार से यीशु मसीह ने इन परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त किया। He says as an answer, the first temptation, और उसने verse 4, he answered and said, it is written. और किस प्रकार से उसने शैतान को जवाब दिया पहले परीक्षा के दौरान, जो कि चौथे वचन में लिखा है, यीशु ने कहा लिखा है, यानी वचन से उसने जवाब दिया। Once Jesus quotes, look what the devil does. The devil then, verse 5, the devil taketh him up into a holy city. He leads Jesus away to the next temptation. He has no chance when Jesus Christ quotes the scriptures. और जब यीशु मसीह ने बाइबल के वचन से शैतान से बात किया, शैतान के पास कोई मौका नहीं मिला दोबारा पलटकर जवाब देने के लिए, इसलिए अगला वचन जवाब पढ़ेंगे, वहां देखेंगे यीशु मसीह को पकड़ के एक पवित्र नगर की ओर लेकर के गया। After the second temptation, how did Jesus answer? Verse 7, it is written again. और जब दूसरी परीक्षा की घड़ी आई तो आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने उसका किस रीति से जवाब दिया। साथ में यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है करके। What does the devil do after Jesus Christ quotes the Bible? He takes him to the third temptation, verse 8. फिर जब उसके दूसरे सवाल का जवाब मिल गया, फिर भी शैतान ने क्या किया, यीशु को नहीं छोड़ा, फिर तीसरी परीक्षा के लिए यीशु मसीह को ले गया। After the third temptation, how did Jesus Christ respond? और तीसरे सवाल का जवाब देने पर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? Verse 10, then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. और किस प्रकार से शैतान को 10वें में जवाब दिया, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। How does the devil respond to that quoting of scripture the third time? और फिर उसके बाद शैतान ने किस प्रकार से जवाब दिया या उसके मन में सोचा ये तीसरी परीक्षा का उत्तर मिलने के बाद? Verse 11, then the devil leaveth him. और 11 जवाब पढ़ेंगे, वहां उसका उत्तर है, तब शैतान उसके पास से चला गया। So what you have to learn to do is quote the scripture. तो सबसे पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है, जब आप परीक्षा में पढ़े आपको वचन बताने की आवश्यकता है कि ये लिखा है। But look at after the temptation in Genesis 3:5, what does a woman do? She doesn't quote scripture, she just takes and eats. लेकिन आप देखें हवा के समय में उत्पत्ति 3:5 में क्या हुआ, जब शैतान ने उससे परीक्षा की बातें की, हवा ने उसको पलटकर जवाब नहीं दिया, लिखा नहीं है, लेकिन वो शैतान की बातों में आ करके उस फल को तोड़ती है और खाती है, जिसके द्वारा पाप उत्पन्न हुआ। Do we have a thing to clean this board with? Yes sir, it's not there yesterday. No, it's not there anymore. यहाँ पे एक कपड़ा रखा था। Guys, don't have to put everything off. This is how sin comes in the world, how it starts. और
इस प्रकार से पाप इस जगत में प्रवेश करता है। First, sin is presented. और सबसे पहला जो पाप है वो वर्तमान समय का है, यानी अभी का, So it is shown as being sin. जो दिखाता है कि आप पाप में ही हैं। Secondly, it's illuminated. It's illuminated. It's shown as really nice and pretty and tempting. और दूसरा जो है इल्यूमिनेट, यानी कि जो दिखाता है, जो बहुत अच्छा और सुंदर और वैभव है। The third step is you start to debate. Well, I can do it, maybe get away with it. I get pleasure for a short season, but it's not right. You start to debate. और तीसरा है जो आप अपने आप से ही मतभेद करते हैं कि ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, नहीं ये सही है या गलत है, आप आपस में बहस कर रहे हैं। Then the fourth step is a decision. You need to make a decision in your heart. I sin or I resist temptation. और चौथा जो है वो कंफर्म करना है कि आपको पाप करना है या आपको पाप को हमेशा के लिए छोड़ देना है। And the last, the fifth, the final act is you act, you sin. और जो पांचवा बताता है वो है करके दिखाना, या तो आप उस पाप को करके दिखाते हैं या उस पाप को नहीं करके दिखाते हैं। So when it comes to Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, he only went this far. Sorry? Sin was presented and illuminated. और केवल इस तरह इस पाठ में आप आते हैं कि पाप जो है वो वर्तमान समय में है और वो आप अपने जीवन में उसको देख रहे हैं। But he never debated it because here is where sin enters. लेकिन आप कभी भी उस पाप को लेकर बहस नहीं करेंगे क्योंकि यहां पहले से ही पाप पहुंच चुका है। So the best to do every day is to start with the Lord Jesus Christ with prayer and the Word of God. तो करना क्या है, हर रोज उस परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। So when you start with the Word of God cleansing you and the Holy Spirit filling you every day, और जब आप रोज प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा रोज आपको पवित्र यानी शुद्धिकरण करना शुरू करेगी। the lust in you will not be brought to sin. जो पाप आपके अंदर है, जो कार्य करने की इच्छा है, वो कभी आपको उस पाप तक लेकर नहीं जाएगी। But lust brings sin, sin brings death. और जो चाह है, करने की चाह है, वो पाप लेकर आती है और पाप जो है वो मृत्यु लेकर के आता है। We call it LSD, lust, sin and death. और ये बताता है कि करने की चाह है तो पाप है और उसके बाद मृत्यु तो है ही। So when you no Bible, no breakfast, you start the day with the Word of God in prayer. इसलिए आप सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले, सुबह का नाश्ता करने से पहले प्रभु का वचन पढ़ना भी शुरू करें। The chances that you start to debate sin is way smaller every day than when you don't start the Word of God, the day off with the Word of God in prayer. अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना शुरू करेंगे तो जो बहस की बात है वो आपसे दूर हो जाएगी, लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो वो बहस हमेशा आपके जीवन में चलता रहेगा। And of course, going back to your question, Genesis 3:5, God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, ye shall be as gods, knowing good and evil. और दोबारा से आपके सवाल की ओर चलते हैं, उत्पत्ति 3:5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So their eyes were opened and they did not come to know good and evil. तो वहां लिखा है कि आंखें उनकी खुल गई थी लेकिन वो अच्छे और बुरे के ज्ञान का फर्क नहीं समझ पा रहे थे। But they did not become as the gods. यहां तक कि वो परमेश्वर के तुल्य भी नहीं हो पाए थे। Now these gods, they are described in Psalm 82. और ये जो प्रभु के विषय में बता रहे हैं वो भजन संगीता 82 में है। And I don't know any nation in the world which has more of these fallen gods, fallen angels as India and Nepal. Psalms 82. Psalm 82, verse 1, God standeth in the congregation of the mighty, he judgeth among the gods. How long will you judge unjustly and accept the persons of the wicked? Selah. Verse 1 and verse 2. भजन संहिता 82 का 1 और 2, परमेश्वर की सभा में
परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? सलाह। Now these creatures were called the created sons of God, and they were already there before Genesis 1:3. और यहाँ पे जो बनाए हुए जीव के विषय में बता रहे हैं, ये पहले परमेश्वर के पुत्रों के नाम से जाने जाते थे, उत्पत्ति 1:3 से पहले। And in the days of Noah, these fallen angels, fallen sons of God, were the rulers and the judges of the earth. और उत्पत्ति की पुस्तक जब 6ठा अध्याय में आप पढ़ेंगे नूह के समय में, तो वहां जो परमेश्वर के पुत्रों का वर्णन किया गया है वो इन्हीं के विषय में बताता है। Look at Genesis 6:4. आइए पढ़े उत्पत्ति 6:4। Genesis 6:4. There were giants in the earth in those days, also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. उत्पत्ति 6:4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र की मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तो उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल में प्रचलित है। So today they were completely destroying the earth in the days of Noah, and that's why God sent the flood in. और अभी वो पूरी रीति से विनाश कर दिए गए उस नूह के बाढ़ के समय में, इसलिए वो बताता है। They were the created angels or sons of the Most High. और उन्हें स्वर्गदूतों के समान बनाया गया था, जो परमेश्वर के पुत्रों के समान हैं। They were spirits directly created by God. और उनकी आत्मा परमेश्वर के द्वारा सीधा बनाया गया था। Now these were judges and rulers in the days of Noah, and completely corrupted the earth. और नूह के समय में जो न्यायाधीश लोग थे उस समय, वो पूरी रीति से बर्बाद करने वाले लोगों में से थे। But look what happened with them. लेकिन आइए देखें उनके साथ क्या हुआ। They drowned as man. और वो मनुष्य के समान। Look at Genesis 6:13. आइए पढ़े उत्पत्ति 6:13। And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, that's the fallen sons of God. And behold, I will destroy them with the earth. उत्पत्ति 6:13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, क्योंकि मैं उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। यानी कि वो उनके विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे। Now, the Bible says, on the moment they died, their spirits right now are chained in hell with chains of darkness. और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो उस समय मरे, उनके जो प्राण थे बदल गए और परिवर्तन हो करके वो नरक में अभी जो अंधकार का समय काल का पीरियड है उसके दौरान उनको रखा गया है। 2 Peter 2:4 says, 2 Peter 2:4, God spared not the angels that sinned, but cast down and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. 2 Peter 2:4. दूसरा पतरस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर उन्हें कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहे। Now these fallen sons of God now in hell will come up at the last judgment. तो ये जो परमेश्वर के पुत्र के विषय में बताया जा रहा है, जब अंत में सबका न्याय होगा, तब ये परमेश्वर के सम्मुख में शामिल किए जाएंगे। Jude 6 reads, the angels, just before Revelation, the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting change and the darkness unto the judgment of the great day. यहूदा की पत्री जब उसका 6ठा वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने
अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। Now, once they come up at the great white throne judgment, you know who will judge them? एक बार जब वो परमेश्वर के सफेद सिंहासन के सामने आएंगे तो क्या आप जानते हैं कि उनका न्याय कौन करेंगे? Who will judge them? कौन उनका न्याय करेंगे? Believers. Yeah, 1 Corinthians 6 verse 3. I just want to see if you read your Bible. 1 Corinthians 6 verse 3. बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने कि विश्वासी लोग उनका न्याय करेंगे। पहला 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? You will judge the angels. Why you? Please translate it. या पहला कुरिन्थियों 6:3 हम किस बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, हमारी सेवा पर कोई दोष नहीं। एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों, मैंने दूसरा पढ़ लिया, पहला कुरिन्थियों 6:3 वहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते अंत के दिनों में हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। Why will you judge them? आप क्यों उनका न्याय करेंगे? Because the Bible says in John 1 verse 12, for all who received him, that's Jesus Christ, to those he gave power to become the sons of God, those who believe in his name. You take the place in of the fallen sons of God from before the flood. तो आप क्यों उनका न्याय करेंगे? क्योंकि जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो उस अधिकार के दौरान आप उन परमेश्वर के पुत्रों का न्याय करते हुए नजर आएंगे। Now these fallen sons of God were very cruel. और ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं जिन्हें स्वर्ग से धकेल दिया गया, वो बहुत ही दुष्ट थे। They were vengeful. और वो बहुत बुरे थे, immoral, और पाप में थे, and in many cases sex perverts. और यहां तक कि गलत प्रकार के व्यभिचार में भी थे। And they're known as the gods of Greek and Roman and Nordic mythology. और उन्हें रोमियो का ईश्वर करके भी कई लोग पूजते हैं। And in your culture or the Indian culture, as the gods who came from the Himalayas down toward the Indian subcontinent. और यहाँ तक कि आपके कल्चर में और हिंदुओं के कल्चर में माना जाता है ये वो ईश्वर है जो पहाड़ यानी पर्वत से कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे जमीन पर आया है। And many of these fallen sons of God worshipped in the Hindu, the Greek, the Roman, the Nordic mythology are the same with different names. और ये वही परमेश्वर के पुत्र जिन्हें धरती पर धकेल दिया गया, इन्हें अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग ईश्वर के नाम से पूजते हैं, देवताओं के नाम से पूजते हैं, चाहे वो भारत देश में हो, रोम में हो या अलग अलग प्रकार के जगहों पर हो। And they will come back. Jesus says, as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man, just for the second coming of Jesus Christ. और वो दोबारा आएंगे जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था। And I don't know, but you know the Bollywood movies here in India. मैं नहीं जानता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप भारतीय सिनेमा देखते होंगे। Let me guess. Just let me guess. मुझे सोचने दीजिए। The last 20 years. 20 साल पहले many of the stories from the Bhagavad Gita और बहुत सारी कहानियां जो भगवद गीता से ली गई थी about Brahma, ब्रह्मा के विषय में, Vishnu, विष्णु के विषय में, Shiva, शिवा के विषय में, Kali, Durga, काली के विषय में, दुर्गा के विषय में, have been reenacted and made of in Bollywood movies. Is that correct? और इन्हें नए सिरे से सिरजा गया और भारतीय सिनेमाओं में उनको दिखाया जा रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? You know why they do that? आपको पता है मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? To prepare the people of the Indian subcontinent
for the return of the fallen angels. मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने भारतीय लोगों को अच्छे रीति से समझाए कि वो धकेले हुए स्वर्गदूत वो दोबारा से आ रहे हैं और वो किस रीति से आ रहे हैं वो सर बता रहे हैं. In America, you call them Spider-Man, Superman. और अमेरिका देश में फिल्में आपने देखा होगा, सुपरमैन के ऊपर है, स्पाइडरमैन के ऊपर है. Do you know these movies about Superman, Spider-Man? Are they known here in Nepal and India? क्या आप जानते हैं नेपाल में और भारत देश में कि सुपरमैन के नाम से बहुत सारी फिल्में हिंदी में हैं, हिंदी में, नेपाली में है? They know it? Okay. You know that or not? Do I speak to people who don't know that? आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं तो यस बोले ताकि आवाज सुनाई दे. सुपरमैन, स्पाइडरमैन के बारे में सुने हैं? Yes. Okay, well, we have kids, so you know that they know that. They're heroes, you know. So Superman doesn't have an S; it's a snake on his breast. Serpent. सुपरमैन के आपने देखा होगा छाती के बीच में वो एस नाम जो लिखा है वो एस नहीं है, वो एक सांप है, सांप का चिन्ह है. The Spider-Man makes this sign. That's the Il Cornudo sign, the devil sign. और स्पाइडरमैन जो है इस प्रकार का जो चिन्ह बनाता है वो एक शैतान का चिन्ह है. They're the American version of the fallen sons of God. और जो अमेरिका के जो बहुत सारे लोग हैं वो उन धकेले हुए स्वर्गदूत की काफी सारी चीजों को कॉपी करते हैं. And these you see them also in the Hollywood movies where the Roman gods, the Egyptian gods, Isis, Osiris, and the Greek gods are reenacted again in Hollywood movies. और आपने विदेशी फिल्मों में देखा होगा कि इजिप्ट के देवता और दूसरे देश के देवता दोबारा से जी उठे हैं और अपने काम क्रिया में फिर से लग गए हैं. And you see them also in the Nordic gods as Thor, Odin. These are the names of the Nordic fallen angels. और ये जितने प्रकार के जो नाम आप फिल्मों में देखते हैं उन देवी देवताओं के, वो उन धकेले हुए स्वर्गदूत के नाम हैं. And these fallen sons of God are very powerful and they can do miracles according to Acts chapter 14. और प्रेरितों का काम 14वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो ये जो धकेले हुए स्वर्गदूत के विषय में बता रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा सामर्थी हैं और बहुत ही प्रकार के चिन्ह और चमत्कार भी करके दिखाते हैं. They're cannibals and they eat human flesh and drink human blood. और वो हफ्सी हैं, इसलिए वो इंसानों का मांस खाते हैं और इंसानों का लहू पीते हैं. And they come back. और वो वापस आएंगे. According to Jesus Christ. यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार वो वापस आएंगे. It says, as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. पर यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के समय में था वैसे ही परमेश्वर के पुत्र के समय में भी ऐसा ही होगा. So there's nothing new under the sun. तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं होगा पुत्र के समय में भी. And all these Bollywood and Hollywood movies are just brainwashing that once they shown up, maybe after the rapture of the church, they will be accepted by the world as the saviors from outer space. और जितने भी भारतीय सिनेमा है या विदेशी सिनेमा है, ये सारे लोगों का जो दिमाग है उसमें बेकार की चीजों को भर रहे हैं कि एक बार जब कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा तो बाकी जो लोग बच जाएंगे उनके लिए नया राज्य का स्थापना किया जाएगा. And they'll be the exact opposite of what is shown in the movies. They're very vengeful, wicked, immoral creatures. They're not humans, they're creatures. और जो कुछ भी वो फिल्मों में दिखाते हैं लोगों को कि इस प्रकार से ऐसा होगा, वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो झूठे हैं, वो पापी हैं, लोगों को छल दिखा करके ठगते हैं. And when they mix with the daughters of man, giants will come out of that. और आपने पढ़ा होगा जब मनुष्य का पुत्र स्त्री के पास आया तो उनके में से दानव और सूरवीर पैदा हुए. And they're under the authority of the god of this world, the devil. और they're under the authority of the god of this world, the devil. और वो सब शैतान के अंडर में है जो पृथ्वी का राजा है. Look at Acts chapter 14. प्रेरितों के काम 14वें अध्याय को हम पढ़ेंगे. Acts chapter 14. Here we see that the apostles heal a man.
verse 8, there said a certain man at Lystra, impotent in his feet, before being a cripple from his mother's womb, would never had walk. And Paul sees him and heals him, verse 9 and verse 10. प्रेरितों काम 14 अध्याय 8, 9 और 10। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तो वह उछलकर चलने फिरने लगा। So here the people think that the fallen angels, the fallen sons of God came down because they have an ability to heal people. और यहाँ पर वो सोचने लगे, कई लोग सोचते हैं कि वो धकेले हुए स्वर्गदूत हैं जिनके पास लोगों को चंगा करने का क्षमता है। Look at verse 11. They say the gods are come down to us in the likeness of man, and they call Barnabas Jupiter and Paul Mercurius because he was the chief speaker. और उसी का 11 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है, लोगों ने पौलुस को यह काम करते देख लुकानिया और भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। So the chief god among the Romans was Jupiter, or the Zeus among the Greeks. तो जो उनके बीच में जो उनका ईश्वर रहेगा, उनके नामों से वो लोग पौलुस को सोच रहे थे और बुला रहे थे। What is the chief god among the Hindus? Brahma? Yeah. Oh, the Brahma of the Hindus is the Jupiter of the Romans and is the Zeus of the Greeks. और ब्रह्मा जो हिंदू लोगों का देवता है वो जुपिटर के नाम से और जूस में जाना जाता है यहूदियों में। Now look what happens in the next verse. आइए पढ़े प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में क्या हुआ। Then the priest of Jupiter, verse 13, which was brought before the city, brought oxen, holy cows, and garlands, what you do to honor people here in India, unto the gates, and would have done sacrifice with the people. Acts 14:13. प्रेरितों काम 14 का 13 को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 14 का 13। ज्यूस और उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहते थे। So these fallen sons of God are connected with Jupiter. और जो धकेले हुए स्वरदूत हैं वो उन जुपिटर के समान हैं। And garlands are brought out. You do that here to honor a guest. You garland him, right? Yeah. This was from. तो आदर के लिए जो उनको चादर चढ़ाया जाता है, उनको शॉल ओढ़ाया जाता है, वो उनका आदर सम्मान के लिए किया जाता है। And we see secondly that priests want to sacrifice an ox, an holy cow. और जैसा कि हमने पढ़ा वहां जो याजक थे मंदिर के सामने बैल को बलि चढ़ाना चाहते थे। Now the most holy animal here in Nepal India is a cow. Is that correct? पवित्र जो जानवर है नेपाल में वो गाय को माना जाता है। Yes. Where does it come from? और ये कहां से आया? It's a picture of something. और ये कुछ चीजों का चित्र है। Because the head of these fallen sons of God, these fallen angels, is the devil, the god of this world. और जैसे बताया कि धकेले हुए जो स्वर्गदूत है ये एक शैतान के समान है। And he is not a human being. He doesn't have a soul, but he looks like an animal. और वो कोई इंसान नहीं है, वो एक ऐसा जीव है जो कि जानवर के समान दिखता है। What kind of an animal? किस प्रकार के जानवर? Look at Ezekiel 28. आइए इज़िकल की पुस्तक को हम पढ़ेंगे। Ezekiel chapter 28. इज़िकियल 28 अध्याय। We read in verse 13. This is not the king of Tyrus. This is somebody way older. Because in verse 13 of Ezekiel 28 we read, there has been in Eden the garden of God. इज़िकियल 28 का 13 को हम पढ़ेंगे। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक,
पगरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, सरब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बस बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वह भी तैयार की गई थी। So this was in Eden, and he had musical instruments built in as part of his body. और ये अदन की वाटिका में थे और उनके अंदर गीत का, म्यूजिक का सारा चीज पहले से ही बांसुरी और तुरही बसाई गई थी। And look at verse 14 and verse 15, that this creature was on the mount, holy mount of God, and he was perfect till iniquity was found in him. आइए 14 और 15 को पढ़े किस प्रकार से है। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। So he's called an anointing cherub. He's called an anointed, a Messiah, a Christ. तो वो वहां पर चेरोब के समान और जिसको मसीहा करके भी माना जाता है। Verse 16 at the end, he's a covering cherub. और जब 16 को हम पढ़ते हैं वहां लिखा है चमकने वाले मणियों के बीच। So when you have here the throne of God, यहां पर जो हमारे परमेश्वर का सिंहासन है, there's 1, 2, 3, 4, and the anointed cherub is missing, and that was him. He was the choir director covering the throne of God. तो यहाँ जो परमेश्वर का सिंहासन है इसके बगल में 1, 2, 3, 4, लेकिन ऊपर के समय जिनको नियुक्त किया गया था बाजे बजाने के लिए म्यूजिक के तौर पर, वो वहां नहीं है। And he's in number 5. He's missing now. There are 4 left. और ये 5वां नंबर है जो वहां अभी विराजमान नहीं है। Number 5 is the number of death. और 5वां नंबर जो है वो मृत्यु का नंबर है। And that stands for the aquatic, the reptilian class of animals. और ये रेंगने वाले जीव के समान है। Because the devil is now a dragon, a reptilian, a serpent, a snake. क्योंकि शैतान जो है वो अभी एक ऐसा अजगर के समान है, सांप के समान है जो रेंग कर चलता है। Come to Ezekiel chapter 1 verse 5 and let's take a look how a cherub looks like. इज़ेकियल चैप्टर 1 verse 5. इज़ेकियल की पुस्तक 1:5 को हम पढ़े और पता करें कि जो शैतान, जो ड्रैगन है, वो किस प्रकार का है। Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures. This was the appearance. They had the likeness of a man. इज़ेकियल चैप्टर 1 वर्स 1 1:5. 1:5 1:5 में इस प्रकार से लिखा है, और उसके बीच में 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था। And it says the foot, verse 7, they have the feet was like the sole of a calf's foot. और 7वां वचन जो लिखा है, उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे। Looks like that. जो बछड़े होते हैं उनके जो पैर होते हैं, जो खुरे, वो उनके समान थे। Ezekiel 1:10. 1:10 में यहां इस प्रकार से लिखा है, Please read it. उनके सामने के मुखों के रूप मनुष्य का सा था और उनके चारों के दाहिने और से मुंह सिंह के से थे और बाघ के और मुख बैल के से था और चारों के पीछे के मुख उकाव के पक्षी के से थे। So we see here they had faces like the face of a man,
a lion, an ox, and an eagle. तो हमने यहाँ देखा कि उनके जो मुंह थे वो मनुष्य कैसे थे, सींग कैसे समान थे, बैल के समान थे और शेर के समान थे। Now look at Ezekiel 10, इज़िकेल 10वां अध्याय में जाएंगे, verse 4. चौथे वचन को पढ़ेंगे। No, Ezekiel 10, verse 14. 14वें वचन को पढ़ेंगे। Everyone had 4 phases. The first was the phase of a cherub. The second was the phase of a man. The third, the phase of a lion. The fourth, the phase of an eagle. और 14वें में लिखा है, एक एक के 4 मुख थे, एक मुख तो करूब का सा था, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। So here we have 3 of the animals in chapter 1 and chapter 10 are the exact same. और हमारे पास यहाँ 3 प्रकार के हमने जानवर देखे पहले अध्याय में और तीसरे और 10वें में। It's an eagle, a lion, and a man. और यहाँ पे हमने देखा पक्षी के समान, मनुष्य के समान और सिंह के समान। But Ezekiel 10:14 says the fourth is the phase of a cherub. और यहाँ हमने इज़िकेल 10 में देखा कि चौथा फेस वो चरूब के समान था। Now look at Ezekiel 1:10. What is the fourth mentioned there? आइए देखिए इज़िकेल 1:10 में वहां चौथा क्या मेंशन है। No, well, I let them out and read them themselves. आप देखिए और पढ़िए, इज़िकेल 1:10 में चौथा जो सिर था वो किसके समान था, आप पढ़ करके आप बताइए। How does the cherub look? और वो चेरूब किसके समान दिखता था, आप देख के बताएं। आप पढ़िए, नेपाली, भोजपुरी, हिंदी जिसमें आपका पढ़ने का मन है आप पढ़िए। इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़िए। दे वांट टू रीड इन इंग्लिश। पढ़िए ऊंचे आवाज में। 4 फेसेस। ह्यूमन। Okay, human, eagle, and lion. हाँ, तो आपने पढ़ा 4 फेसेस थे, है ना? They're the same as the one in Ezekiel chapter 10, right? और वही सेम आपने उसमें देखा इज़िकेल के 10वें अध्याय में। But the one in Ezekiel chapter 10 was called a cherub. And how is it called here? और इज़िकेल 10 में हमने पढ़ा कि वहां चेरूब लिखा है, एक शकल चेरूब का भी था, तो क्या उसमें चेरूब के अलावा और कौन सा नाम है? How? देख के बताइए। Ox. Ox. Yeah. An Bell. ox. That's a holy cow. That's where all your holy cows come from in Nepal and India. और उसको पवित्र गाय करके लोग मानते हैं और इसीलिए आज भी नेपाल में और इंडिया में गाय को पवित्र मानते हैं। And the devil always is portrayed like this, with horns, like a cow, with hoofs of a calf, and a tail from an ox. और शैतान जो है वो हमेशा इस प्रकार से रहता है कि बैल के समान उसके सींग रहते हैं और बकरी के समान उसके पैर और यहाँ पर एक लंबी पूंछ। That's where your holy cow comes from. और इसी रीति से पवित्र गाय का निर्माण हुआ। And the devil is portrayed as one with horns, a tail, and calf's foot. और शैतान भी इसी प्रकार से तैयार हुआ, सींग और उसका बकरी का पैर और पूंछ। So when the devil appeared to Eve, he didn't show up as a ox. He showed up as a beautiful young man, although he was a serpent. और जब शैतान हवा के सम्मुख आया तो वो अपने असली रूप में नहीं आया, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे प्यारा और जवान उस सांप के रूप में आया। Because the devil in 2 Corinthians 11 is transformed into an angel of light, in appearance of light. और दूसरा कुरिन्थियों की जो पत्री आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि शैतान अपने रूपांतरण, अपने रूप को बदल करके स्वर्गदूत के लिबास में आ जाता है। So your whole culture is full of a remembrance of the giants who ruled this subcontinent, called the fallen sons
of God, the fallen angels. तो आपके रीति रिवाज के अनुसार जो देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं वो वही धकेले हुए स्वर्गदूत के समान हैं जिन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था। And they are all under the authority of a holy cow, which is still worshipped anywhere in your streets in India and Nepal. और पवित्र गाय पर उनका पूरा अधिकार था, यहां तक कि आज भी देखिए इंडिया में या नेपाल में उसे पवित्र ही कह के आज भी लोग बुलाते हैं। And they will come back. I will be back. They will be back. और वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। And they're not good, they're bad. और वो अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं। They're so bad that God drowned the Himalaya mountains under a flood of water. और वो इतने बुरे थे कि परमेश्वर ने उस 40 दिन 40 रात के बाढ़ में नीचे दबा करके उन्हें नष्ट कर दिया। But they survived. लेकिन फिर भी वहां वो जीवित रहे। Because when Joshua came in the land of Canaan, there were giants in the land of Canaan. क्योंकि जब यहोशू उस वायदे के भूमि पर पहुंच गया था तो वहां पहले से ही दानव को देखने को मिला है। And when 500 years later David had to fight Goliath, Goliath was a giant from the Philistines. 5 साल पहले जब दाऊद एक युद्ध को लड़ा था, उसकी जो लड़ाई फिलिस्ती से हुई थी गोलियत से, वो भी एक दानव ही था। So what happened with these fallen sons of God? तो क्या हुआ इन धकेले हुए स्वर्गदूतों के साथ? Most of them drowned in the flood. बहुत से लोग ऐसे थे जो बाढ़ में दबा दिए गए। Some must have survived, otherwise they cannot be giants after the flood. कुछ मर गए होंगे और कुछ जीवित हो गए होंगे, अपने आप को बचा लिए होंगे। There are only two options. यही केवल दो इसका समाधान है। They went outside of our planet, हो सकता है वो उस स्थान के दूसरे स्थान पे चले गए होंगे, or they went inside the planet. और हो सकता है वो उस स्थान के निचले स्तर में चले गए होंगे। Now, when they went inside the planet, there is stories of huge labyrinths inside the earth, also under the Himalayas. और जब हम पृथ्वी के नीचे की बात करते हैं तो नीचे स्तर पे भी कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। When they went outside, it's possible they went to Jupiter, because the other time Jupiter is mentioned is in Acts 19, verse 35. और जब दूसरे स्तर की बात करते हैं तो हो सकता है वो जुपिटर पे चले गए होंगे, क्योंकि बाइबल में कई बार जुपिटर का वर्णन किया गया है। Look at Acts chapter 19, verse 35. आइए पढ़े प्रेरितों के काम 19 का 35 में। When the town clerk had appeased the people, he said, "Ye men of Ephesus, what man is there not know that the city of Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?" 1935, Acts. प्रेरितों के काम 19 का 35। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसुस की नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। So here we see that Diana, the worship of the mother goddess, the mother earth, is connected with an image which fell down from Jupiter. तो यहाँ पर हम एक स्त्री को देखते हैं अरतिमिस, जिसका महान करके वर्णन है, जो कि जुपिटर से धकेली गई थी। Okay, no, this is not Artemis, it's Diana. That's a translation mistake in the Hindi Bible. It's Diana. डायना। Yeah, Diana is there's a difference. Artemis only was a local deity worshipped by the Greeks in Greece. डायना जो है वो ग्रीक लोग उसका क्या करते थे, उपासना किया करते थे। इसमें नाम बदल दिया गया है। But the Diana of the Ephesians was worshipped all over the world. और डायना जो है वो इफिसियों के लोग उसका क्या करते थे, उपासना किया करते थे। Pardon me. Look at end of verse 27. Diana, the goddess Diana, the great goddess Diana, should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshipeth. Diana was worshipping all the world, not Artemis. 1927 1927.
जब आप प्रेरितों का काम 19 का 27 को पढ़ेंगे वहां लिखा है, इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रही, वरन यह है कि महान देवी डायना का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। So, when the fallen sons of God left this earth, either they went inside or they went outside, and they will one day come back. And when they come back, they should probably come back connected with Jupiter. और एक बार जब वो धकेले हुए स्वर्गदूत अगर नीचे भेज दिए गए, अगर वो बाहर निकल गए तो वो जुपिटर में गए, तो वहां से वापस आए हैं तो एक दिन जरूर वापस आएंगे। So coming back to your question in Genesis 3:5. वापस से आपके सवाल की ओर आते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 3 का 5। It is true, they would know good and evil, their eyes were opened, but they never became as gods. These were created beings, angels, which fell and destroyed the earth and will come back shortly before the second coming of Jesus Christ. तो यहां पर हम देखते हैं जो 3 का 5 को पढ़ा गया कि उनकी आंखें खोल दी गई, लेकिन उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं मिला, और यहां तक कि वो परमेश्वर के तुल्य भी नहीं हुए, जैसा कि धकेले हुए स्वर्गदूत अपने आप को परमेश्वर के पुत्र का नाम दिया करते थे। Does it answer your question? क्या आपके सवालों का जवाब मिल गया? Anybody has another question? और अगर यदि किसी और के पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। पूछ लीजिए, हो सकता है बाद में आप बोले हमारे पास था लेकिन हम नहीं पूछ पाए, तो हो सकता है आपको मौका ना मिले। सॉरी, चलिए बताइए। What is circumcision and not circumcision in the Bible? Yes. Okay. The word circumcision is mentioned first when Abram was forced by or asked by God to circumcise his son Isaac. और जो खतना के विषय में जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम अब्राहम के बारे में, अब्राहम जो अपना पुत्र का खतना के विषय में बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक। And circumcision was taking a piece of the male sexual organ where the seed was, and blood was shed the 8th day after the child was born. और जो खतना है वो इस रीति से होता है कि उनका जो मांस है ऊपरी का, उसको काटा जाता है, जो वहां से लहू की धारा बहती है, लहू निकलता है, जो आने वाले जनरेशन यानी पीढ़ी के लिए काम में आता है। And it was also so connected with seed and blood. और वो बीज और लहू को दर्शाता है। And when a child was not circumcised, God could kill it, like He did with the children of Moses when they went from Midian back to Egypt. The angel of the Lord almost killed Moses' son because he was not circumcised. और उस समय में यदि कोई बच्चा अपना खतना नहीं कराता है तो परमेश्वर के द्वारा मार दिया जाता है, जैसे कि मूसा के बेटे के साथ हुआ। जब वो अपना खतना कराने को तैयार नहीं हुआ तो परमेश्वर उसे खत्म करने ही वाला था। So this thing is connected, the circumcision, with seed. ये जो खतना है वो सीड को दर्शाता है, बीज को। And secondly, blood. और दूसरा जो है वो लहू को दर्शाता है। Why? Because it's a type of a spiritual circumcision in the New Testament. और नए नियम में ये एक आत्मिक खतना को दर्शाता है। It's in Colossians 2:11 and 12, we see that we have been circumcised with the circumcision without hands, the circumcision of Christ. और जब कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां हम जानते हैं कि हमारा आत्मिक खतना हुआ है परमेश्वर के द्वारा। Colossians 2:11, and whom we also are you circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ,
Verse 13, and you being dead in your sins and the circumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven your all trespasses. कुलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय 11, 12 और 13। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ भी जी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर का खतना रही दशा में मुर्दा थे उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। So in the Old Testament, the Jews were the chosen people of God. They had to be circumcised, but it was an outward sign of the males. They belonged to the living God. तो पुराने नियम में जो यहूदी थे, जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए यहूदी कहलाते थे, उनका खतना होना बहुत ही जरूरी था। The Bible teaches that the soul is in the shape of your body, inside your body. परमेश्वर का जो वचन बताता है वो कहता है जो हमारा प्राण है वो बिल्कुल हमारे आत्मा की तरह दिखता है। The Bible says in Luke chapter 16 that when the rich man dies, he lifts up his eyes in hell. और मैथ्यू चैप्टर Luke 16. लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है जो अमीर आदमी अपने आंख उठा करके देखता है और वो नरक से देख रहा होता है। So a soul has eyes. यानी कि प्राण का आंखें भी है, वो देख सकती है। And he asked if Lazarus can dip the top of his finger and touch with water the tongue of the rich man in hell. So a soul has a finger and has a tongue. और वहां पे आप देखें कि उसका इच्छा है कि वो जो लाजर स्वर्ग में था वो अपनी उंगलियों में एक बूंद पानी भिगा करके उसके मुंह में डाल दे। यानी कि वहां पर दिखाया गया है कि जो प्राण है उसकी उंगलियां भी हैं। So your soul is in the physical shape of your body, inside your body. यानी कि जो प्राण है वो आपका शरीर का अंदरूनी ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल आपके बाहर के हिस्से की तरह दिखता है। So the physical circumcision in the Old Testament of every male Israelite, और जो शारीरिक रूप से खतना था वो हर एक इजरायलियों के लिए था, is a type of your circumcision here as a Gentile Christian in 2025. और यानी कि आपका खतना ऐसे अन्य जाति 2025 में God has taken a knife परमेश्वर ने उस चाकू को लिया and cut your flesh loose from your soul through the word of God, according to Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों 4:12 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने चाकू लिया और आपके शरीर को आत्मा से अलग कर दिया, यानी कि आत्मिक खतना हुआ है। Hebrews 4:12 says, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4 verse 12. He divides asunder soul and spirit. इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। That's why it says in 1 Peter 1:23, we're born again of incorruptible seed by the eternal word of God. तो पहला पत्रस 1:13 बताता है कि हम उस परमेश्वर के आत्मिक खतना हमारा हुआ है। Secondly, you're bought with the blood of God, Acts 20:28. और प्रेरितों के काम 20:28 के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। So you're saved and born again by the word of God and the blood of God, a type of the seed and the blood of the Old Testament, which was shed
when somebody was circumcised. आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और उस प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा आपका आत्मिक ऑपरेशन यानी कि आत्मिक खतना हुआ है। So on the moment you get saved, your soul is cut loose from your body. और उस समय जब आपने उद्धार पाया, आपका शरीर आपके आत्मा से अलग हो चुका है। And that means that on the moment you get saved, your eternal soul is destined to spend eternity in heaven, no matter what you do on earth with your physical body. इसका मतलब एक बार जब आप यीशु मसीह को स्वीकार किए और जब आपका आत्मिक खतना हो गया, आपका आत्मा का 100% निश्चित होगा कि अंत उसका स्वर्ग में ही जाना है। उसके बाद अगर आप शरीर से जो कुछ भी करते हैं। See, in the Old Testament, when somebody died, he went inside the earth into Abram's bosom. और पुराने नियम में अगर आप देखें, जो भी व्यक्ति मरता था वो पृथ्वी के निचले हिस्से में जाता था, जिसको अब्राहम का गोद कहा गया है। But when you die, you go straight to a place called heaven. लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी, आप सीधा उस स्थान पर जाएंगे जिसका नाम स्वर्ग कहा गया है। So in the Old Testament, when somebody died, his soul was stuck to his flesh, and depending upon his works, he would go to a place called heaven or a place called hell. पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता था, वो अपने कामों के अनुसार ही उसका न्याय स्वर्ग में जाए या वो नरक में जाए। So supposedly, here is this is paradise or Abram's bosom. और उदाहरण के तौर पे जैसे कि ये पैराडाइज लिखा है, यानी कि अब्राहम का गोद। And people were comforted here. और लोग यहाँ पर आएंगे। And here is hell for those who died in their sins and never repented. और ये नरक है उन लोगों के लिए जो अपने पाप के साथ मरे हैं, जिन्होंने कभी अपने पाप का अंगीकार नहीं किया। Both are inside the earth, according to Matthew chapter 12, verse 40. Hell is inside the earth. और मत्ती रचित सुसमाचार 12:40 के अनुसार ये दोनों चीज पहले पृथ्वी के निचली स्तर पे पाए जाते थे। So, and he went to paradise. Now in the New Testament, my flesh is cut loose from my soul. So when I touch something unclean, my body gets defiled, but not my soul. लेकिन नए नियम के अनुसार जैसे हमारा आत्मिक ऑपरेशन करके हमारा शरीर आत्मा से अलग हो गया, तो अभी अगर हम कुछ गलत वस्तु भी उठा ले, वो हमारे शरीर तक ही सीमित रहेगा, हमारे प्राण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Are you not happy you're born in 2000 or happy born in these days and not in the Old Testament? तो आप किस खुश हैं कि आपका जन्म नए नियम में हुआ है या आपका जन्म पुराने नियम में होना चाहिए था? You're spiritual circumcised, meaning your soul is once and forever secure in Jesus Christ. And the moment your body dies, your soul goes straight to heaven because no sin can touch your soul anymore. आपका आत्मिक खतना होने के बाद कोई जरूरत नहीं है आपको दोबारा पृथ्वी के निचले स्तर पे आने की। आपका मृत्यु के बाद आप सीधा ही परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। Does that answer your question? ये आपके सवालों का जवाब है। क्या आप समझ गए खतना को लेकर के? खतना के विषय में आप समझ गए जी? All right, anybody else? क्या आप में से और किसी के पास कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं? जैसे सर ने तीसरे स्वर्ग के विषय में भी बताया। क्या आप जानते 3 स्वर्ग होते हैं? जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप पूछ सकते हैं 3 स्वर्ग कौन कौन से हैं। या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। Actually, in the Old Testament, the people said that they should not eat the meat, but in New Testament, people blames that Christians are eating meats. So we should eat meats. We should be a vegetable. Yeah. Look at 1 Timothy chapter 4 and Colossians chapter 2. These are the बात ना करें, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं सर। Colossians chapter 2 verse यीशु की पुस्तक to 23. 2:23 में, On the other hand, 1 Timothy chapter 4. और दूसरे स्तर में 1 तिमोथी का 4था अध्याय को पढ़ेंगे। Colossians 2:20. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as touching living the world, are you subject to ordinances? Touch not, taste not,
handle not, which are all to perish with the using of the commandment and doctrines of man, which things have indeed a show of wisdom and will worship and humility, neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. पास्टर जी बातें ना करें, ध्यान से वचन को सुने। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय 20 से लेकर 23 तक, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके सामने जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, और तुम ऐसी विधियों को वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इस विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगभास और भाव के ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनकी कुछ भी लाभ नहीं होती है। So here's a warning. Those people who say, touch not, taste not, handle not, think that by touching anything physical with your flesh, your soul can be defiled now in the church age. तो ये जो चेतावनी जो है, ये उनके लिए है जो उद्धार नहीं पाए हैं कि इसको नहीं छूना, इसको नहीं खाना, क्योंकि वो अगर उद्धार नहीं पाए, वो कुछ भी गलत चीज को छूते हैं तो शरीर के साथ साथ उनके प्राण पे भी असर पड़ता है। But we just said in Colossians 2:11 and 12 that your flesh is cut loose from your body, so whatever you eat has no effect on the state or the health of your soul. लेकिन जब हमने कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ा 20 से लेकर के, तो यहाँ हमने जाना कि हमारा शरीर क्या है, प्राण से अलग हो गया है। तो यदि आप किसी भी वस्तु को छूते हैं या खाते हैं, वो केवल आप अपने शरीर से कर रहे होते हैं, जो कि आपके प्राण पे कोई असर नहीं हो सकता। Now look at 1 Timothy chapter 4. तो आइए हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे, 1 तिमोथी का 4 अध्याय को। There is a warning in verse 1 not to heed seducing spirits and doctrines of devils. God has sound doctrine, the devil has also a doctrine. 1 तिमोथी 4 का 1 को हम पढ़ेंगे, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। यानी अगर परमेश्वर के पास आत्मा है, तो शैतान के पास भी खुद की आत्मा है जो लोगों को भरमा देगी। Now one of the doctrines of devils, verse 3, is forbidding to marry and commanding to abstain from meats. और जो शैतान की भरमाने वाली बातें हैं, वो आप 3 में पढ़ सकते हैं, जो विवाह को करने से रोकने और भोजन की वस्तुओं को खाने से परे रखने की आज्ञा देती है। You can eat everything you want. आप कुछ भी खा सकते हैं जो आप चाहते हैं। When you can, with a good conscience, pray about it, ask God's blessing over it, that's fine. जो भी भोजन आपके सामने परोसा गया है, एक अच्छे विचार के साथ आप प्रार्थना करें उसके शुद्धिकरण के लिए, और आप खा सकते हैं। Look at verse 4. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. और 4 और 5वां, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का द्वारा शुद्ध हो जाती है। So the earth was cursed because of Adam's sin, so everything from this earth is cursed, and when you put it in your mouth, you have to pray over it and ask the word to sanctify it. पृथ्वी जो थी वो श्रापित हो चुकी थी आदम के श्राप के साथ साथ, इसलिए जो कुछ भी पृथ्वी से उगता है वो सब श्रापित है। तो जरूरी है कि जब हम उसे खाएं तो उसकी शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना जरूर करें। Besides, practically, meat has a certain substance in it which helps us to fight off devils. That's a good thing to eat meat. और जो मांस है जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में फायदे को ही लेकर के आता है, जो कि कई बार हमें शैतान से लड़ने की ताकत को भी देता है। तो मीट खाना अच्छी बात है। You don't want to eat meat? That's fine too. लेकिन यदि आप मीट नहीं खाना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
Romans said, if you have not a good conscience to eat meat, then don't eat meat. और रोमियो की पत्री कहती है यदि आपका मन शुद्ध नहीं है मीट को खाने से तो आप उसको ना खाएं। We should not become a stumbling block to each other by eating meat or not eating meat. और आप दूसरों के लिए एक बेकार संदेश का कारण ना बने इस मीट को खा के या ना खा के, वो आपके ऊपर है। Does it answer your question? आपके सवालों का जवाब मिल गया है? चलिए, All right, anybody else? और किसी के पास और भी कोई सवाल है? अच्छे सवाल थे, अगर आपके पास भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। And fish you can eat too, like the fish we just had. That was real good fish, amen? आप मीट के साथ साथ मछली भी खा सकते हैं, जैसा कि आज हमें लंच में मिला, मछली भी बहुत अच्छी बनी थी आज की। All right, anybody else? Maybe one more question? हम एक और सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपके पास एक और सवाल है तो सर के पास समय है बताने के लिए। एक और सवाल जो आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। पास्टर जी, जाते जाते एक सवाल पूछ लीजिए, आपके पास एक मौका है सवाल पूछने का। जैसे मुस्लिम लोग आपको न्योता देते हैं खाने के लिए, तो क्या आप वहां जाके खा सकते हैं, नहीं खाते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। The Muslim people, if they invite them for Bakrid, as they cut the bali, they sacrifice, and they invite them to come and eat, should they go to eat that sacrifices meat to eat or not? Well, it's sacrificed to an idol, right? Yeah. To Allah. Yeah. जो वो अपने अल्लाह को चढ़ाते हैं